A very warm morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School, and I am your social science teacher. So, students, today we all are going to start our new chapter from your history book. The name of the chapter is Devotional Paths to the Divine. The name of the chapter is Devotional Paths to the Divine. So, class, first of all, basically, in this year, in class 7, we have uh, we are studying about the medieval history, right? We have this book on medieval history. So, devotional paths to the divine. So, the medieval period has great importance in the religious development. So, first of all, what is the meaning of devotional? Devotional means spiritual, something which is someone which is connected with the act of religious worship. That is devotional. When we say I have a devotion on this God, or like I have a faith, devotion is the term for spiritual person. Okay, devotional person means spiritual person, someone who has connection with the act of religious worship. So whatever the worships we are doing, whatever the prayers we are doing, so all these are devotional. Paths means way to the divine God, godlike structure, beautiful souls. Okay, so that are divine, supreme God, divine. Okay, like in Hinduism, in Sanatan Dham, we have Lord Rama, Lord Ganesha. In Islam, we have Allah. In Christianity, we have Jesus. In Buddhism, we have Lord Buddha. In Jainism, we have Lord Mahavir. So these are divine, godlike structures, godlike saintly. So those are divine. So devotional paths to the divine. This is the chapter. So class, the medieval period has great importance in the religious development of India. During this period, many religious ideas and practices came up into the existence that have deeply influenced the life of the people for centuries. So among them, two are like two main popular beliefs were Bhakti movement and the Sufi movement, which we all are going to study in this chapter. So they have their own thoughts. Bhakti thoughts are different. Sufi thoughts are different. So how these religious movements evolved? Evolved means डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे कैसे डेवलप करने लगी है, कैसे उनमें चेंजेस आने लग गए हैं, सिंस स्पेशली सिंस 18th century we will talk about it. Okay, so you have seen people perform rituals of worship. Rituals, different things we do as a worship, like we are making parshads, we are singing bhajans, we are like putting tilaks, we are wearing different types of caps, we are like repeating the name of gods, etc. These are different rituals of worship. We singing bhajans, kirtans, or kavalis, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Even भगवान का नाम लेते लेते लेते, या आपने बहुत बार देखा होगा भजन करते करते, गाना गाते गाते, मतलब भगवान के गाने गाते गाते, कीर्तन करते करते, मतलब बहुत लोग रोने भी लग जाते हैं. कुछ लोग खुशी के मारे रोने लग जाते हैं, कुछ लोगों को अपना दुख याद आ जाता है. ठीक है, कि भगवान हमारे ये सारे जो दुख है, जो भी सैडनेस है हमारी लाइफ में, वो हमसे ये सही कर दीजिए. तो बहुत लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोग डांस करने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं. So such intense devotion or love for God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 18th century. जो ये इंटेंस, जो हमारा ये डिवोशन है, हमारी जो ये अलग अलग जो हमारा जो बिलीफ है, हम बहुत ज्यादा डीपली, इंटेंस मीन्स डीपली, हम बहुत डीपली जो है जो फेथ कर रहे हैं, गॉड पे फेथ करते हैं,
is the legacy of various kinds of bhakti. Legacy means inheritance. हमने बहुत सारे भक्ति what is bhakti is a Sanskrit term which bhakti came from the Sanskrit term bhaj, which means to divide or share. Okay, so bhakti is the total surrender of self to God. हम भगवान को अपने हम अपने आप को भगवान पे क्या करते हैं, अर्पित कर देते हैं. इट इज द expression of extreme love for God without expecting anything in return. हम भगवान से रिटर्न में कुछ नहीं मांगते हैं, बट हाँ हमारा जो प्यार है भगवान को लेके, दैट इज भक्ति. ओके, person's devotions to his or her chosen deity is bhakti. And Sufi movement, Sufi is related to Islam. Okay, Sufi philosophy was based on Islam. So their major belief is one God and that all men are his children. That is Sufi movement. Okay, so ये जो evolution हुआ है, evolvement हुई है, जो changes आए हैं, gradually जो develop हो रहे हैं 8th century से, तो बेसिकली हम उन्हीं रिलीजियस डेवलपमेंट्स को, रिलीजियस आइडियाज को, प्रैक्टिसेस को कैसे आई है, कैसे चेंजेस हुए हैं, उन चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड. बिफोर लार्ज किंगडम्स emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddesses. As people were brought together through the growth of towns, trade, and empires, new ideas began to develop. The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to be widely accepted. Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. The belief that social privileges came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. So before large kingdoms emerged, like large empires emerged, like Rajputana, like Mauryan Empire, etc., etc. Before these large kingdoms appeared or emerged, different groups of people worshipped different gods and goddesses. They believed in the idea that all living beings pass through countless cycles of birth and rebirth, and they should be free from this vicious circle. मतलब ये जो cruel, vicious का मतलब होता है cruel, कि आइडिया जो है कि हम जो है काउंटलेस, हमारा बर्थ होता रहता है और फिर हम क्या है हमारा रीबर्थ होता है. ठीक है, रीबर्थ में जो लोग बिलीव करते थे कि बर्थ और रीबर्थ जो होता है काउंटलेस साइकिल्स होती है. अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, इफ वी आर परफॉर्मिंग गुड डीड्स, इफ वी आर डूइंग गुड वर्क, डीड्स का मतलब एक्शंस. ओके, इफ यू आर डूइंग गुड वर्क, इफ यू आर डूइंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू वाइडली एक्सेप्टेड, एंड इफ यू आर डूइंग बैड तो हमारे साथ बुरा होगा, इफ यू आर डूइंग गुड तो हमारे साथ गुड अच्छा होगा. Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. कि हाई कास्ट जो राजा के, नोबल फैमिली मीन्स राजा की फैमिली, राज दरबार में, ठीक है, राजघराने में, सॉरी, कुछ लोगों को सोशली बाय बर्थ क्या है प्रिविलेज मिलती है कि वो राजा का बेटा है तो वही आगे जाके क्या बनेगा, राजा बनेगा. हाई कास्ट है, ब्राह्मण है, ठीक है, या हाई कास्ट है तो वो क्या है, हाई कास्ट को, जैसे ब्राह्मण्स को ही उस टाइम पे खाली टेक्स्ट पढ़ने का जो है एक प्रिविलेज मिलता था कि यही पढ़ लिख सकते हैं, तो हाई कास्ट को क्या है पढ़ने मिलेगा. तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीव्स और आइडियाज हैं, हमारे जो पहले के बिलीव्स हैं ये. Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or the Jainas, according to which it was possible to overcome social personal effort. Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion, or you can say bhakti. This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the early centuries of the Common Era.
So many people, many religious teachers even rejected the prevalent religious beliefs and practices. ये जो हमने देखा birth and rebirth कि कुछ particular social particular जो कास्ट हैं, हाई कास्ट क्लास, हाई कास्ट फैमिलीज हैं या नोबल फैमिलीज हैं, उन्हीं को क्या मिलेगा कि उन्हीं को जो टेक्स्ट जो हैं, जो आपके रामायण वगैरह हैं या जो भी आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वगैरह हैं, वो उन्हीं को पढ़ने मिलेगा, ठीक है, या फिर कुछ प्रिविलेजेस मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स लाइक बुद्धा एंड जैनास, ठीक है, उन्होंने इस आइडिया को क्या किया, रिजेक्ट किया। दे रिजेक्टेड दिस प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। The social order had many unequal social castes. Obviously the social order have many social castes. Okay, so social differences and break the cycle of rebirth through personal effort, like according to Buddha's mythology and Jaina's mythology, जो ये साइकिल है, ये जो विशियस साइकिल है बर्थ और रीबर्थ का, जो ये क्रूएल साइकिल है बर्थ और रीबर्थ का, और जो डिफरेंसेस हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बट हमें पर्सनली बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी अच्छे काम करने पड़ेंगे। एंड अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, और कुछ लोग जो हैं ये सुप्रीम गॉड, जो सबसे सुपीरियर है गॉड, ठीक है, जो हमारे डिवोशन से क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, हमारी भक्ति से खुश हो सकते हैं, हमारा जो डिवोशन है उसके तरफ हम अगर उन्हें प्रे करें, हम उन्हें उन्हें प्यार दें, उन्हें खुश करें, तो हम भी क्या कर सकते हैं, ये जो विशियस सर्कल है उसको ब्रेक कर सकते हैं। और ऐसे कुछ आइडियाज जो हैं भगवत गीता में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, और ये कॉमन एरा, मतलब जो जीसस क्राइस्ट का एरा है उसको हम कॉमन एरा बोलते हैं, तो उस टाइम पे काफी पॉपुलर भी हुए। Shiva, Vishnu and Durga as a supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. Elaborate means expanded, बहुत बड़े-बड़े rituals होते थे। Shiva, Vishnu, भगवान Lord Shiva, Lord Vishnu and Lord Durga, Goddess Durga, इनको सुप्रीम डाइटीज का मतलब होता है कि गॉड को बोला जाता है, डाइटीज, ठीक है। ये जो है सुप्रीम डाइटीज एज अ सुप्रीम गॉड आए, और लोग जो है इनको बहुत ही बड़े, बहुत ही enlarged, elaborated rituals के साथ उन्हें क्या करने लगे, प्रे करने लगे, वर्शिप करने लगे। At the same time, God and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu और दुर्गा, और बहुत अलग अलग जगह जो है गॉड और गॉडेसेस को वर्शिप करने लगे, बहुत अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग लोगों को, अलग अलग भगवान को, डाइटीज को जो है लोग प्रे करने लगे, वर्शिप करने लगे। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स मीन्स लोकल बिलीव्स, मिथ्स and legends become a part of the Puranic stories, and methods of worship recommended in the Purans were introduced in the local cults. Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs. So local myths, local beliefs and जो legends है, they became a part of the Puranic stories. जो Puranic stories हैं उनके part बनने लग गए थे। Eventually जो Purans हैं वो they also recommended that it was possible for devotees to receive the grace of God. मतलब God की जो God का जो परछाई है, गॉड के जो दर्शन है वो भी वो पा सकते हैं, गॉड उनके सामने आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्लास, स्टेटस, रिलीजन एटसेट्रा, किसी के भी रिगार्डलेस जो है भगवान उनके सामने प्रकट हो सकते हैं, ठीक है, वो आशीर्वाद पा सकते हैं अगर आप कुछ प्रॉपर जो क्या है वर्शिप्स करो। तो जो ये भक्ति है, भक्ति का जो आइडिया है, ठीक है, जो डिवोशन है,
लविंग डिवोशन, आपका जो डिवोशन है भगवान के लिए, वो इतना पॉपुलर था कि बुद्धिस्ट और जैनास ने भी क्या है, इनके बिलीव्स को अपनाया। ओके, now just look at this figure, a page from a South Indian manuscript. Manuscript something which is written from hand, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट उसे बोलते हैं। A page from a South Indian manuscript of the भगवत गीता, भगवत गीता का एक पेज है साउथ इंडियन, ठीक है, साउथ इंडियन आपके भगवत गीता का पेज है, जिसमें पिक्चर भी ड्रॉ की हुई है और फिर कुछ श्लोक्स भी लिखे हुए हैं। So now a new kind of bhakti in South India, Nayanars and Alvars. Okay, Nayanars and Alvars. The 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements. 7th to 9th, 7th century से 9th centuries तक हमने काफी religious movements का emergence देखा। हमने देखा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, emerge हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के religious movements चल रहे हैं। लेड बाय नयानर्स। नयानर्स कौन होते हैं? नयानर्स होते हैं सेंट्स डिवोटेड टू शिवा, जो शिवा की पूजा करते हैं, जो ऐसे पंडित होते हैं, ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो शिवा को बहुत मानते हैं, उनको नयानर्स बोला गया है। एंड अलवार्स किसको बोला गया है? सेंट डिवोटेड टू विष्णु, जो विष्णु को बहुत मानते हैं, उनको लॉर्ड विष्णु को जो मानते हैं उनको अलवार्स बोला गया है। Who came from all castes including those considered untouchable like पुलायर एंड बनारस। जो साउथ इंडिया में है पुलायर एंड बनारस जो है, उनको लोअर क्लास अनटचेबल कास्ट माना जाता था। इवन ये भी जो है नयानर्स और अलवर्स थे, कुछ शिवा के डिवोटी थे, कुछ विष्णु के डिवोटी थे। They were sharply critical of the Buddhists and Jainas and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path to salvation। अब देखिए ये बुद्धिस्ट माइथोलॉजी को, जैन माइथोलॉजी को काफी क्रिटिक करते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे, और जो एंड preached ardent love of Shiva। ardent, what is the meaning of ardent? ardent means very enthusiastically, very passionately, बहुत ज्यादा zeal के साथ, बहुत passionately जो है शिवा को मानते थे, विष्णु को मानते थे अलवर्स और नयानर्स। एंड दे थॉट कि हम अगर डिवोटी बनेंगे, शिवा के डिवोटी बनेंगे, हम विष्णु के डिवोटी बनेंगे, हम बहुत अच्छे से उनको मतलब डिवोशन के साथ उन्हें वर्शिप करेंगे, तो वी गेट द पाथ ऑफ एज अ पाथ टू सेल्वेशन, हमें सेल्वेशन जो है वो मिलेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्वेशन? सेल्वेशन अगर हिंदी में बताऊं, इट मीन्स मोक्ष, और अगर इंग्लिश और इट मीन्स you can say deliverance from sin। sin से मतलब कि जो है जितनी भी बुरी चीजें हैं उनसे मुक्ति मिल जाना, जो ये हमारा लाइफ साइकिल है, विशियस साइकिल है, क्रूअल साइकिल है, उससे बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है उससे मुक्ति मिल जाना, ठीक है, मोक्ष आ जाना, सेल्वेशन उसको बोलते हैं। लाइफ लाइन बोल दिया, आप लाइफ लाइन बोल सकते हो। Though they drew upon the ideals of love and heroism as found in Sangam literature. Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era. तमिल लिटरेचर है जो कॉमन एरा में कंपोज हुआ है, लिखा गया था, एंड उसमें लव, आइडल्स ऑफ लव एंड हेरोइज्म, ठीक है, लव के जो आइडल्स है उसे बताया गया है। आइडियल मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब है कि परफेक्शंस, ठीक है, परफेक्शंस को बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइडियल। लव, आइडियल्स ऑफ लव एंड हेरोइज्म। हेरोइज्म का मतलब क्या होता है? हेरोइज्म का मतलब होता है ब्रेव, ठीक है, साहस दिखाना, दैट इज ब्रेव, ग्रेट ब्रेवरी। एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, और उनको भक्ति से ब्लेंड किया गया है। ब्लेंड मतलब, ब्लेंड करना मतलब कि ब्लेंड मीन्स यू कैन से टू फोल्ड अप, ठीक है, टू फोल्ड अप, और उसी से उसको मिक्स करना, ठीक है, मिक्स करना विद अनदर सम। जैसे हम केक क्या बोलते हैं,
केक के अंदर जैसे ऑयल डालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं. इट मीन्स समथिंग विच वी मिक्स. तो ये जो लिटरेचर था, तमिल लिटरेचर, ये संगम लिटरेचर था, उसको भक्ति के वैल्यूज से क्या करना, ब्लेंड करना, उसे मिक्स करना. The Nayanars and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music. अब जो ये शिवा, नयानर्स और एल्वर्स थे, जो शिवा के भक्त थे, जो एल्वर्स जो विष्णु के भक्त थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एंड they compose means to form, and to form exquisite poems. Exquisite means very beautiful, very delicate. ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर पोम्स को वो कंपोज करते थे, जिसमें वो अपने डाइटीज को, अपने गॉड को प्रेज करते थे. मतलब प्रेज करना मतलब कि उनकी तारीफ करते थे, उनको उनकी प्रशंसा करते थे. और जहां पे भी वो जाते थे उनके लिए वो भजन कीर्तन ये सारी चीजें भी करते थे. ओके, सो between the 10th and 12th centuries, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiographies or religious biographies. Hagiographies क्या होता है, जब हम किसी भी संत की लाइफ के बारे में लिखते हैं, that is known as hagiographies या religious biographies को बोला जाता है. So besides hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. Today we use this text as source for writing histories of the Bhakti tradition. अब जो 10th और 12th सेंचुरीज में, अभी तक नयानर्स और अल्वर्स 7th to 9th सेंचुरीज तक हमने बात की थी. आफ्टर दैट 10th and 12th सेंचुरीज के बीच में चोला और पांड्या किंग आए थे एंड उन्होंने बहुत ही इलेबोरेट मींस बहुत वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स, मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया था. जो मंदिर थे, टेम्पल्स, उन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स को उन्होंने बनवाया था. बहुत सारे एंड मेनी around many of the shrines visited by the saint poets. श्राइन क्या होता है, एक यू कैन से अ होली प्लेस, जैसे टेम्पल है, ठीक है, हम बहुत पवित्र जगह मानते हैं. सो बहुत सारे ऐसे सेंट पॉइंट्स थे, वो बहुत सारे ऐसे अल्वर्स एंड नयानर्स थे जो इन टेम्पल्स में विजिट करते थे एंड वहां पे भक्ति ट्रेडिशन को और टेम्पल वर्शिप को उन्होंने लिंक किया और उससे एनकरेज करते थे लोगों को. इवन लोगों को बताते थे कि हमें पूजा अर्चना कैसे करनी है. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम, और जिस टाइम पे हेजियोग्राफी, ठीक है, बहुत सारे पोम्स को कंपाइल किया गया था. कंपाइल मीन्स टू मिक्स, ठीक है, साथ में कंपाइल करना मतलब एक साथ लेकर आना, ठीक है, एक साथ लेकर आना, असेंबल करना. हेजियोग्राफीज राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइव्स, ठीक है, रिलीजियस बायोग्राफीज और संत जो पंडित वगैरह थे, संत वगैरह थे, उनकी लाइफ के बारे में लिखने के अलावा अल्वर्स और नयानर्स ये सारी चीजें भी कंपोज हुई थी. इवन जो आज ये जो हेजियोग्राफीज वगैरह हैं वो हम भक्ति ट्रेडिशन को लिखने में काफी यूज भी करते हैं, ठीक है. सो नाउ this is an example, the devotee and the Lord. This is a glimpse of a religious biography, or you can say poem of Alvars or Nayanis. This is a composition of Manika Vasagar. Into my vile body of flesh you came as as though it were a temple of gold, and soothed me wholly and saved me. O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth and death and illusion you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you.
and never can I part it from you. अब नाउ देखिए पोइट जो है यहाँ पे अपना रिलेशनशिप जो है डिस्क्राइब कर रहा है किसके साथ, डाइटी भगवान के साथ, अपने गॉड के साथ, कि मैं जो हूँ आपसे कनेक्टेड हूँ, आप सबसे प्योर हैं, आपने मुझसे ये जो सॉरो एंड बर्थ, ये जो विशियस सर्कल है वो मुझसे आप ले लीजिए, मेरे को फ्री कर दीजिए, आपने मुझसे ये जो बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है वो मुझसे आपने ले लिया है और आपने मुझे फ्री छोड़ दिया है, एंड मैं आप ही का पार्ट हूं, आप मुझे अलग नहीं कर सकते, कोई भी मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक डिवोटी, एक सेंट ने एक पोम जो है लिखी थी, ठीक है, लॉर्ड के बारे में, लॉर्ड के लिए। So now this is the bronze image of मनकीवा सागर, ठीक है, साउथ इंडियन हम रिलीजियस भक्ति की बात कर रहे हैं, भक्ति की, तो ये देखिए ब्रॉन्ज स्टेच्यू बना हुआ है, ये मनकीवा सागर का है ये ब्रॉन्ज स्टेच्यू। So this is all about today class. Thank you so much for joining the class. Now we will continue in our next class. So till that, read that chapter till page number 106 and this chapter till page number 106, and if you face any problem, do let me know. Bye bye, take care.